आपके सवाल। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्हें ये लगा कि भगदड़ की आड़ में उनके हत्या की साजिश कर रहे हैं कुछ लोग। मैंने सुना उनके वक्तव्य को और बहुत पीड़ा हुई सुनकर कि एक संत शिरोमणि इस देश में, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार है, उस प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस करता। तो सोचिए कि किस तरह की मानसिकता वाली ये सरकार है, सोचिए कि इनकी असलियत क्या है। ये एक संत ने आपके सामने खोलकर रख दी, एक शंकराचार्य जी ने आपके सामने खोलकर रख दी। हाँ, पूछिए साहब। और offered prayers in an abandoned house. As I said, we earlier thought they were only opposed to minorities, and we've been fighting this politics, this anti-constitutional politics. We've been fighting. We are ready to fight that. But now, when we see, you've given a good example of people offering namaz in their own house are getting booked. Why? Under what section of which law? There is no longer CRPC, there is no longer IPC, there is BNS. Under what section of the BNS can you arrest or can you book someone for offering namaz? And this is not the first time. A few months ago, people were offering namaz on their terrace and they were booked. But it's not just minorities. As you've seen in this press conference, this ruling party, which takes votes in the name of Hindus, look at the way they are dealing with the highest saint of Hindu religion, the Shankaracharya himself. For the first time in the history of India, Shankaracharya ji could not go for the annual ritual, which is the Snan, Shahi Snan, during the Mauni Amavasya. For the first time. So what does this show you? It shows to you that they do not belong to anyone. They do not treat anybody with sensitivity, but for their own. Who are their own? Those multi-billionaires for whom there will be a separate arrangement for the Mahakumbh. But ordinary mortals like you and me will go there, struggle, suffer, may die, may get into a hospital, may not be able to actually take the holy dip. Doesn't matter to them, doesn't bother them. For them, what is important is the cosmetic changes. Change the name of Allahabad, make it into Prayagraj. But what happens in Prayagraj? Shankaracharya ji is not allowed to take the holy dip. So, they are making fools of everybody. That's our point. And what has happened yesterday is, I'm sorry, not pardonable at all. Even the Mughals could not do it, never did this. The British never did this. But our own government, and that too a government, the ruling party which claims to be the messiah of Hindus, has gone and done this. गैर हिंदू प्रवेश पर बैन लगाने की मांग जो है वो की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? एक वक्त अभी तक, हाल तक ऐसा होता था कि विदेशी पर्यटक भी आते थे। हमारी आस्था ऐसी है, हमारी सभ्यता ऐसी है, एक बहती हुई गंगा के समान हमारी सभ्यता है। वो बहती रहती है इसलिए जीवित रहती है। उसको रोक दोगे वो समाप्त हो जाएगी। हमारी सभ्यता की बहती हुई नदी को ये रोकने की साजिश है। विदेशी पर्यटक आकर मां गंगा का स्नान करते थे, उसमें स्नान करते थे, अपने आप को पवित्र महसूस करते थे। आक्रांता आए इस देश में, इतिहास गवाह है, इसी देश के होकर रह गए। इस सभ्यता में ऐसे घुल मिल गए जैसे दूध में शक्कर घुल मिल जाती है। ये इस सभ्यता की ताकत है, ये इस संस्कृति की तासीर है। उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ सिर्फ असुर कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते, हिंदू नहीं कर सकते। क्यों सामने नहीं आते आदित्यनाथ जी?
क्यों अफसरों को सामने कर रहे हैं? और पालकी को रथ कहकर एक और पाप करवा रहे हैं। वो पालकी है, वो रथ नहीं है। रथ अडवाणी जी की होती थी, पालकी होती है शंकराचार्य जी की। जिसको रथ और पालकी का अंतर नहीं मालूम, वो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। वो अफसरों को सामने खाकी वर्दी को सामने रखकर हमले बुलवा रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों से पिटाई करवाई शंकराचार्य जी के शिष्यों की। आइए ना सामने, वोट मांगिए ना हिंदू धर्म के नाम पर, देखते हैं हम भी। सर, ये न्यूज़ कल से ट्रेंड में है, और जब शंकराचार्य जी के ऊपर इतना आक्रमण हो रहा है और देश में ये हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है मोदी जी और शाह जी क्या संदेश देना चाहते हैं, सारा हिंदू धर्म को हो या सबको, जो मोदी जी और शाह के संदेश खिलाफ? स्पष्ट है, हम पर भरोसा मत करना। न हम काम के हैं, न हम राम के हैं। हम अंबानी और अडानी के हैं और किसी के नहीं है। मोहन भागवत को हम Z+ सिक्योरिटी देंगे, लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों के बाल खींचेंगे, उनकी पालकी तोड़ेंगे, उनको शाही स्नान नहीं करने देंगे, एक अखंड परंपरा को तोड़ देंगे। यह है संदेश। अगर यह संदेश अभी भी अंधभक्तों को नहीं समझ में आता तो बनिए मूर्ख, और मूर्खों को नहीं समझ में आता तो बनिए अंधभक्त। एक छोटा चोर आज इनामी डकैत बन चुका है। उसने लोकतंत्र चुराया, चुनाव आयोग चुराया, कभी नोटबंदी करता है, कभी कुछ करता है। कांग्रेस कितने इसको बड़ा चोर बनाने में आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि कई देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। मतलब रिश्ते खराब हैं। इसमें आप चुप है। अब तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे को नहीं समझ में आया। जी नाम लीजिए, मुझे नहीं समझ में गॉड आया। से मुझे नाम बताइए, शायद समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान का हूं, कई बार हमारे यहाँ आयोडीन कमी हो जाती है। सर, मुगदानी के अलावा और कौन है? मोदानी कौन है? मोदानी कौन है मुझे मालूम नहीं। ओ अच्छा नहीं ठीक है, अब वो जनता खुद तय करेगी। नहीं, अभी इसी पे रहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संभल में वहाँ एक एसपी तैनात थे उस समय, अनुज चौधरी। जब संभल हिंसा हुई तो उन्होंने एक बच्चा, उन्होंने गोली चलाई, पुलिस ने जो गोली चलाई, उसके बाद पीड़ित परिवार इसकी गोली लगी थी। मुस्लिम बच्चा था जो टोस्ट बेचने गया था। उसको गोली लगने के बाद माँ बाप ने चुपचाप इलाज कराया, फिर वो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने का कोर्ट ने अभी ऑर्डर किया कि इन 20 पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, उस CO सहित, और भी CO अनुज चौधरी जो आजकल फिरोजाबाद में तैनात है यूपी में ही, और तमाम 20 लोगों के साथ जो है। वहाँ के SP का बयान आया है कि कोर्ट का ऑर्डर अवैध है। भाई, जब राजा को देखकर प्रजा चलती है, राजा को देखकर उसके संतरी मंत्री चलते हैं। जब राजा ही ऐसा हो, जिस थाली में खाता हो उसी में छेद करता हो, तो आप दूसरी कौमों की क्या बात कर रहे हो? मैं तो आपको शंकराचार्य जी का उदाहरण दे दिया। राजा तो 2 हैं, देश का राजा जिनका आपने नाम कुछ और दिया, और प्रदेश का। ये इनके लिए कोर्ट नहीं कुछ, ये कोर्ट को नहीं मानेंगे। आप देखिए, कोई चीफ जस्टिस, कोई जस्टिस ऐसी कोई टिप्पणी कर दे जो इनके मन माफिक नहीं हो, तो इनकी ये ट्रोल आर्मी उनके भी पीछे लग जाती है। जब ये उस हिंदू धर्म के नहीं हुए जिसके नाम का दुरुपयोग करके ये वोट लेते हैं अपनी झोली फैलाकर, तो वो हमारे आपके क्या होंगे, वो किसी और कौम के क्या होंगे, वो किसी के भी क्या होंगे, उनके लिए कुछ नहीं मायने रखता। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अमिताभ बच्चन की वो पिक्चर याद रख लेना, नमक हराम नाम है उसका। हाँ जी, हम बिल्कुल खड़े हैं। हम जब वाराणसी के घाट, मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर आए, तब भी हमने आवाज उठाई। हमारे कुछ लोग साथी हैं यहां, उनको जेल होनी पड़ी, कैद कर लिया गया। हमने हमेशा आवाज उठाई है। संविधान सम्मत कोई भी बात होगी, कांग्रेस पार्टी आपको सबसे आगे मिलेगी। वो मुसलमान के साथ अत्याचार हो, जो वैष्णो देवी, श्री वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया क्योंकि 44 मुसलमान बच्चे नीट क्वालिफाई कर गए, हमने आवाज उठाई। बैतुल में एक मुसलमान ने आदिवासी बच्चों के लिए, दलित बच्चों के लिए स्कूल खोला अपने खर्चे से, उसका स्कूल तोड़ डाला, हमने तब आवाज उठाई। महाकुंभ में
जो अव्यवस्था थी, लोगों ने जान गंवाई अपनी, हमने तब आवाज उठाई। कोविड में जब मां गंगा के आंचल में लाशें तैर रही थी, हमने तब आवाज उठाई। अब जो आपके सामने हमने ये दृश्य दिखाए, दिल दहला देने वाले दृश्य हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि देश में ऐसे दृश्य दिखेंगे, कभी ये कल्पना नहीं की थी कि मौनी अमावस्या के दिन, माघ मेले के दिन एक शाही स्नान नहीं कर पाएंगे शंकराचार्य जी। हम तब आवाज उठा रहे हैं, जी हां, हम इनके साथ खड़े हैं। हमारा जो राज्य की इकाई है वो लगातार सबसे संपर्क में है, आवाज उठा रही है, साथ खड़े हैं। तो लड़ाई चल रही है कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता है कि जो कल असली चेहरा था वो आज मुखौटा बनकर सामने आता है। पहले अटल जी मुखौटा थे, असली चेहरा अडवाणी जी और मोदी जी थे। अब मुखौटे बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, विचारधारा नहीं बदलती, भावना नहीं बदलती, वैसे ही रहते हैं, सब एक हैं। लेकिन सवाल जरूर पूछेगा, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ये स्थिति, ये सवाल बनता है। के जो राज्य इकाई है या जो भी नेता हैं वो जाएंगे मौके पर? जी हाँ, वो संपर्क में हैं, बिल्कुल जाएंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। मैंने वापस से दोहराया, 3 बार और दोहराऊंगा, लेकिन हमारा सवाल का जवाब जरूर दिलवाइएगा। क्या प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करेंगे? हिंदू धर्म से, हिंदू समुदाय से, हमसे, आपसे, संत समुदाय से माफी मांगेंगे कान पकड़कर या नहीं? अपने कान पकड़कर, उनके नहीं, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं। Sir, a statement has been given by the former CJI regarding the matter of the bail not being given to Mr. Omar Khalid, as he has mentioned that it is their right to have an expeditious trial, and if that would not be done, then bail should be the rule, not the exception. Well, we all agree with you. That's the principle behind our law, that bail is the rule. But there are cases where we've seen that those rules are not being adhered to, and the fact that people are behind bars for so long, the trial goes on and on and on, that in itself is a punishment. Without their crime having been proved, they are being punished. So obviously these are issues that need to be addressed, not just by the judicial community, but also by the political community, by all of us, by civil society. These debates must happen. When he was a CJI, then more than 10 times this matter got adjourned. Well, these are facts. These facts cannot be denied. पवन जी, जी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने आने की वाले, जो जाने वाले? प्रक्रिया- आने वाले चुनने की प्रक्रिया की शुरुआत हो कौन गई सी है। प्रक्रिया भाई है? कहाँ वोट? किसी ने सवाल- देखा? सर, हमारे यहाँ तो वोट होते थे। सवाल पूरा ले लीजिए। आज और कल 2 दिन की ये पूरी प्रक्रिया होगी। आज नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी और ये कहा जा रहा है, ये खबरें निकल कर आ रही है कि नॉमिनेशन सिर्फ एक व्यक्ति का हो रहा है, इसमें किसी तरह का चुनाव हम नहीं तो वही होगा। पूछ रहे हैं आपसे, हमसे नहीं पूछिए। प्रक्रिया आपके माध्यम से, प्रक्रिया नहीं, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा कि आप प्रवक्ता हैं, आप नहीं हैं, लेकिन ये कैसी प्रक्रिया है कि चुनाव से पहले घोषित कर दिया साहब ये हमारे अध्यक्ष हैं? बताइए ना, उनके खिलाफ कौन लड़ रहा है? कब है वोटिंग? कहां हो रही है वोटिंग? आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले अक्टूबर में इसी बिल्डिंग में, उस कमरे में, पीछे वाले कमरे में, हॉल में वोटिंग हुई थी। आप लोग सब यहां थे, बाकायदा कैंडिडेट्स थे 2, हम सब ने अपने वोट का अधिकार किया और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भारी मतों से जीते। पूरी प्रक्रिया सबके सामने थी। ये कौन सा वोट हो रहा है, कौन सा इलेक्शन हो रहा है? इसलिए इसको कम से कम नामांकन, ये चुनाव, ये सब मत, ये इस्तेमाल मत करिए शब्द। यहां तो इन्हें ज्ञानेश गुप्ता की भी जरूरत नहीं पड़ी, यूं ही हो गया काम। सर,
बंगला भी अलॉट हो गया। सर, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपसे थोड़ी देर पहले अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है BVG राम जी बिल को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पिछले 10 साल में अपनी सरकार के दौरान जो भी 9-10 साल सरकार रही उसमें 2 लाख करोड़ रुपए मनरेगा पे खर्च किए थे, जबकि भाजपा सरकार जब बनी और तब से अब तक 9 लाख करोड़ रुपए जो है मनरेगा पर खर्च किए गए। तो ये जो योजना थी ये उसका और अच्छा स्वरूप है। इसमें 100 दिन पहले वो योजना अधिकार थी, 125 दिन का रोजगार हो गया। पहले कांग्रेस इस पे झूठ फैला रही है। पहले वो हक था, संवैधानिक हक का दर्जा दिया गया था। अब वो संवैधानिक हक का दर्जा खत्म हो गया, राइट टू एम्प्लॉयमेंट नाम की चीज खत्म कर दी। जो आपने क्या नाम लिया योजना का, BV ग्राम जी या BV जी नाथुराम जी, जो भी नाम है उसका, लेकिन जो हक था वो हक छीनकर अब सरकार के मन में आएगा तो देंगे, हो सकता है चुनाव के 2 दिन पहले दे दिया और फिर वापस खत्म। अब ये 2 लाख करोड़ 9 लाख, इसका जवाब हम विस्तृत रूप से देंगे और देते आए हैं, लगातार दे रहे हैं। आपको मालूम है इनकी कई योजनाओं में 80 से 90% खर्चा विज्ञापन पे करते हैं और फिर कहते हैं उस योजना में हमने इतना खर्च कर दिया। खर्च किस पे किया? हंसता हुआ नूरानी चेहरा दिखाने में मोदी जी का। लेकिन कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में इतना खर्च हो गया, फोटो में न बेटी दिखेगी, न बेटी बचती हुई, न बेटी पढ़ती हुई, मोदी जी दिखेंगे मुस्कुराते हुए। ऐसे कई योजनाएं हैं। तो इसलिए ये जब कहें कि इतना खर्च कर दिया तो इनसे बुलाओ कि शिवराज जी आइए, प्रधानमंत्री बनना चाहते हो ना अभी 2-3 साल में, बताओ पहले विज्ञापन पे कितना खर्च किया। That includes Marathi, Odia, Bengali, and he has slammed the Center for Political Intervention in the literally awards that are announced annually. Yeah, I mean, why should the center intervene? That's a good question, and we agree with him. Anybody who has understood the history of this country, has understood this country, would never try and insult any rich ancient language the way BJP has been doing it. So therefore, I think respecting the rich tradition of languages of this country is something which comes naturally to anybody who believes in this country. Ji. Thank you.